بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھی اور وہ تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی کمسین تھی تشریف لائی۔ بھوک کی شدت نے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے بھوکے کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلند عطا کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حساس بساس نظر آنے لگی۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لگتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے یہاں تشریف لے گئی۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بیوی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیے۔ فرمایا، پوچھے۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون پیارے ہیں؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، عائشہ۔ بیوی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہو اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے یہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا کہ وہ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیے کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرے، بلکہ میں جس بھی بیوی کے یہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو، عائشہ کے دن کو مقصود نہ کرو۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بات ازواج نے جو متفقہ طور پر طے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے؟ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی نازل فرما دیتے ہیں، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور جوجا کے بستر پر مجھ پر کبھی وہی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ ازواج نے پوچھا، اے سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी और ये जवाब इरशाद फरमाया है। अजवाज ने फिर मशवरा किया, क्यों ना हम ऐसी शख्सियत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे कि जिसकी बात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टालना पसंद नहीं करेंगे। चुनांचा उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सोचा और इन्हें पैगाम भेजकर बुलवा लिया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई तो तमाम अजवाज ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को तफसील से बात बताई और अर्ज किया, बेटी आप अपने बाबा की बारगाह में जाएं और हमारी तरफ से ये दरख्वास्त पेश करें। हमें उम्मीद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात नहीं टालेंगे और हमारा काम बन जाएगा। उम्महाते मोमिनीन की बातें सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकार न कर सकी और अपने बाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हो गई। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया गया कि आपके प्यारे बाबा जान इस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ फरमा है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ से चली और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ ले गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे में दाखिल हुई तो देखा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहन में कुछ काम कर रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो अपना काम छोड़कर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ बढ़ गई और सलाम व दुआ के बाद आने की वजह पूछी तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं देखती हूँ कहीं आपके बाबा जान कहीं सो तो नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। आपने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी प्यारी बेटी फातिमा आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको अंदर भेज दो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफ़क़त से आपको अपने पास बिठाया और फरमाया, बेटी कैसे आना हुआ? अर्ज किया, बाबा जान आपकी अजवाज की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया तो आपने अर्ज किया, बाबा जान जब आप अम्मा आयशा की तरफ तशरीफ फरमा होते हैं तो साहबा किराम बड़े तोहफे और हदिये भेजते हैं, जबकि जब आप किसी दूसरी जौजा के यहाँ तशरीफ फरमा होते हैं तो फिर बहुत कम तोहफे और हदिये भेजे जाते हैं। आप साहबा किराम को हुक्म दे ये तफरीक ना किया करे, बल्कि आप जहाँ भी हुए वहीं तोहफे भेजा करे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर मैं खामोश थी। बेटी की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या तू इससे मोहब्बत नहीं रखती? सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान बिल्कुल मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। फिर फरमाया, बेटी फिर आयशा से प्यार किया करो, आयशा से मोहब्बत किया करो, क्योंकि मैं आयशा से प्यार करता हूँ। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर वापस लौट गई और तमाम बात अजवाज मुतहरात को बयान कर दी। नाजरीन, अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन खुद नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। फिर भला कैसे ये तसव्वुर किया जा सकता है कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान के ताल्लुकात अच्छे ना हो। अब जरा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अल्फाज मुलाहिजा करें। आप फरमाती है, मैंने किसी को नहीं देखा जो आदाते मुबारका में हुस्न सीरत के लिहाज से चलने फिरने में, बैठने उठने में, बात करने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत फातिमा तो ज़हरा से ज्यादा मुशाबे हो। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए उठ खड़े होते, पेशानी चूमते और फिर अपनी मजलिस में अपने पास प्यार से बिठा लेते। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ बैठी थी।
अगरचे माँ बेटी का रुतबा था, लेकिन उम्र में ज्यादा फर्क न होने की वजह से आपस में मोहब्बत और प्यार और दिल लगी भी करती थी, हंसी खेल कर लेती थी। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर मुस्कुराई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराने की वजह पूछी कि क्या बात है, तो कहने लगी, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके वालिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जबकि मेरे वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बात को सुनकर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तड़प उठी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें शुरू कर दी। कहने लगी कि फातिमा, आपने सच कहा, हमें ईमान मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें कुरान मिला, उनके सदके में परवरदिगार की मारिफत मिली, उनके सदके में इस्लाम मिला। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफें की। इतनी तारीफ करने के बाद कहने लगी, मेरे जहन में एक बात आ रही है ऐ फातिमा। पूछा, वो कौन सी बात है? फरमाने लगी, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि फातिमा, आपके शौहर अली मुर्तजा है और मेरे शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बात सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चुप हो गई। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरी बात कही कि फातिमा, मेरे दिल में एक और बात आ रही है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, कौन सी बात? फरमाया, कयामत के दिन जब अल्लाह हमें उठाएंगे तो आपका हाथ अली मुर्तजा के हाथ में होगा और मैं आयशा जब उठाई जाऊंगी तो मेरा हाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में होगा। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद फरमाने लगी, फातिमा, मेरे दिल में एक और बात आ रही है। पूछा, कौन सी? फरमाने लगी, तू खातूने जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है। तू जन्नत में जब तख्त पर बैठी होगी तो तेरे तख्त पर अली मुर्तजा होंगे, मगर फातिमा, जब जन्नत में मैं तख्त पर बैठूंगी तो मेरे तख्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बैठे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इतनी समझ अता फरमाई, इसलिए फरमाया करती थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको ऐसी बातें अता की है जो किसी और की बीवी को नहीं मिली। सबसे पहली बात यह है कि मैं सबसे पहली बीवी हूँ जो कुंवारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, और जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाजें थी या बीवियां थी, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि बद्र की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं कोई कपड़ा तलाश कर रहा हूँ ताकि इस्लाम का झंडा लहरा सकूं। फरमाती है कि मेरा एक दुपट्टा था जिसकी जमीन सफेद थी और इस पर काली धारियां थी। मैंने वो दुपट्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दुपट्टे को अपने हाथ से इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। ये भी अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया। फरमाती है कि एक दूसरा एजाज ये मिला कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सलाम मुझे दुनिया में पहुंचाए। फरमाती है कि मुझे ये एजाज मिला कि जब मुनाफिकीन ने मुझ पर बोहतान बांधा तो इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी इसी तरह तोहमत लगी, बीबी मरियम पर भी तोहमत लगी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मासूम लोगों को मासूम जबानों से रद्द करवाया। छोटे बच्चों ने इस बात की गवाही दी, ये लोग पाक है, इस तोहमत से बरी है। फरमाती है कि जब मुझ पर तोहमत लगाई गई तो अल्लाह ने छोटे बच्चों से गवाही दिलवाने के बजाय खुद अपने कलामे मुबारक में पाक दामनी की गवाही दी। यह तो बड़ा बुहतान है। फरमाती है कि ये एजाज भी मुझे मिला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्तबा जब बिस्तरे अलामत पर थे तो आपका चेहरे अनवर और सर मुबारक मेरी गोद में था। मेरी निगाह आपके चेहरे पर लगी हुई थी और आप इस वक्त अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे थे। ये भी एजाज मुझे मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गोद के अंदर सर रख कर दुनिया से हमेशा के लिए रुखसती हासिल की। दुआ है अल्लाह अज़्वजल हमें इन दोनों अजीम हस्तियों की इज्जत व तौकीर करने की तौफीक अता फरमाए और उनके सदके हमें भी हिदायत कामिला नसीब फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाजत दे तो वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाए।